Welcome to KK News. Today headlines. 11th G1 Annually General Body Meeting today. Visakha Asirvada Function Hall. Highly affected by the Buddhist and they are preaching methods purpose for Indian Navy. Sabna city is the destination city for some of the most popular picnic spots like Boracay, Tiger Jungle, Bear, Butterfly Park, Arku Valley, Anantagiri Hills, Handa Beach, Gangavaram Beach, Ramkrishna Beach, Yushikunda Beach, and etc. BSF up to 1896, its total kilometer is 1287 kilometers, covering Cuttack to Vijayawada. And at that time, this division belonging to Bengal National Railway, which opened on 1st January 1899. BSKP has come into existence in the year 1893. Ocean traffic on 7th October 1933. Thereafter, Walter Government's prominent as important until April 14, 1952. Then it became part of Eastern Railway when BNR was merged with the Eastern Railway. Southeastern Railway emerged on first हुआ। I'm very sorry, साहब का फोन में अटेंड नहीं कर पाया। तलब किया हमारे पास डॉक्टर रमेश साहब बोला आप मुझे बात मान के मैं तलब कर दिया, लेकिन आप विश्वास करिए आपको जानकारी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। और पीसीपी साहब को ऑर्डर दिया, आप उनको नहीं लो। इसी के साथ में क्या कहते हैं साहब ने नियम किया है आप मान लाए बच्चों की Mr. Modi and Sahuji informed me that I think it is a good picnic and I wish you all the best for next 2 days of meditations. Right to stand before you today. This is not a meeting, it is a celebration of the unity of administration and the staff. It is a place where we all come together and see that how our collective journey to make East Coast Railway one of the best performing zone in the country continues in the years ahead. Railway is not an organization, it's a parivar, it's a family. Every mile of track laid, every passenger who reaches home safely, every wagon that carries the nation's good, all of it rests on your shoulder. As I always say, that जब कोई पैसेंजर बस में जाता है और वो लंबी जर्नी करना होता है तो उसको उतनी चेन नहीं मिलती है। जब वही पैसेंजर फ्लाइट में जा रहा होता है तब भी उसको उतना सुकून नहीं मिलता है, बट जब वो ट्रेन में जा रहा होता है तो बहुत आराम से सोता है, क्योंकि उसको पता है कि ट्रेन पे चलने वाला ट्रैकमैन, गाड़ी चलाने वाला एलपी, पीछे पीएमआर और हर स्टेशन का स्टेशन मास्टर है, वो उतनी ही मेहनत करता
तरीके से काम करता है और इसीलिए मैं आराम से सोते हुए अपने डेस्टिनेशन पे जा सकता हूँ। और ये आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा और वही हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का एक खूबसूरत बात है और यही चीज है वो बड़े बड़े अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है कि कैसे एक ट्रेन इंडिया के एक पार्ट से रवाना होती है और दूसरे पार्ट पे पहुंचती है। उसमें कोई भी स्टाफ किसी को नहीं जानता है, ना डायरेक्टली जानता है कि कीमैन कौन है और कीमैन नहीं जानता है कि एलपीएमआर कौन है, बट हर कोई अपनी ड्यूटी है करता जाता है और वही पैसेंजर है वो चाहे ईस्ट से रवाना हुए तो these problems in future. We are doing various policies. Railway is going through a various transformation. We are moving towards a target of 3,000 million ton loading. However, there are few mantras which I will request all of you to follow. The first is safety first. Strengthen track maintenance, upgraded signaling and advanced monitoring technology. With this, we have to ensure that safety remains our utmost criteria. A one bad case and spoil the image, it spoils our 100 days hard work. So it's very important that we give priority to safety. The punctuality and efficiency that lies in our combined efforts. Let our unity, our discipline and our compassion. दिल्ली कन्वेंशन स्टेडियम में 15,000 कैंडिडेट भाइयों को बैंगलोर के साथ में मैं बोला रमेश साहू जी का प्रेजर ECYSC का आदेश पालन करने के लिए ये महानगरी विशाखापट्टनम पहुंच गया आपका दर्शन करने के लिए। एम राघवैया जी, जनरल सेक्रेटरी NFIR, श्री LVSF पात्रोडू BCPO ईस्ट कोस्ट रेलवे, ललित बोहरा जी, KRM वॉल्टेयर, आपके लोकप्रिय नेता श्री ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक कांग्रेस के अन्य पदाधिकारीगण, लेडीज एंड जेंट्स डेलीगेट्स और मेरे अन्य साथी अधिकारीगण, आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मेरे पहले आपके लोकप्रिय डॉक्टर एम राघवैया जी ने एक ओजस्वी वक्तव्य प्रस्तुत किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो सतत उनकी यात्रा है, जीवन के इस पड़ाव पर भी जिस मेहनत, जिस संकल्प के साथ वो आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। ईस्ट कोस्ट रेलवे, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों के अथक परिश्रम और समर्पण के कारण पूरे भारतीय रेलों में अपना एक सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया गया है। हम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं और उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे कर्मचारी कठिन परिश्रम से कभी हिलते नहीं, हमेशा समर्पण भाव के साथ खड़े रहते हैं। तो मैं हमारे सभी कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज आप 11वें बायएनियल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं। 3 दिन आप लोग विस्तार से कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मैंने आपके रिजोल्यूशंस देखे हैं और पास्ट में ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक कांग्रेस ने
जो मुद्दे प्रशासन के सामने उठाए हैं उनके ऊपर भी जो टिप्पणियां हैं, जो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, वो भी एक संकलित करके पुस्तक में दी गई है। और मुझे विश्वास है कि आप आने वाले 3 दिनों में एक बहुत सार्थक चर्चा करके कैसे हम भारतीय रेल को और इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी समस्याओं से हम निजात पाकर आगे बढ़ सकते हैं, इस पर एक सार्थक चर्चा होगी। ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे एक कागज दिया गया है जिसमें हमारी बहुत ही इफेक्टिव एक जो हमारे कार्मिक विभाग की मशीनरी है जो काम कर रही है, उसमें कुछ मुझे आंकड़े दिए हैं और मैं उसमें से कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसमें हमें और आगे बहुत काम करना है और ईस्ट कोस्ट रेलवे प्रशासन की ओर से मैं आप सबको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि श्रमिक कल्याण के जो भी कार्य हैं उनमें हम हमेशा आगे रहकर उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। विशेष रूप से मेरी पूरी टीम और मेरे दरवाजे हमेशा किसी भी समस्या को लेकर यदि कोई कर्मचारी आता है उसके लिए खुले हैं। कई सारी उपलब्धियों के बारे में इसमें चर्चा है। लंच का समय हो रहा है, मैं उनको पढ़ दो। श्रमिक कल्याण के करीब करीब हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे साहू जी बार बार हमारे सामने आते हैं और हम उनके ऊपर कोशिश करते हैं कि जितने जल्दी निराकरण हो सकता है उसके बारे में कार्य किया जाए। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक भरोसा दिलाते हैं कि जो भी मुद्दे, जो भी समस्याएं हमारे समक्ष लाई जाएगी उनके निराकरण के लिए हम लोग हमेशा तत्पर